Well, guys, so today we are going to discuss the paper 3 of semester 3, right? The name of the paper is Advanced Educational Research. Okay, so might be you can think this is your exam preparation class, right? Notes I have already given to you, right? As far as the lectures, all of the lectures are present on my channel. So today, once again, we are discuss the whole paper, right? So I have seen the syllabus. So we will finish this paper in the 2 lectures. Okay. Today I will take the lectures, and after 4 or 5 days, then I will take the lecture, right? So first of all, see that this is your syllabus, advanced educational research, right? Unit 1, 2, 3, and 4, you all are aware of that, right? Under the unit 1, tools and techniques. ये देखिए tools and techniques हैं, right? Characteristics of a good research tools. Likert scale, ये देखो rating scale, Likert and Thurston scale. Then under approaches to research, there are 3 methods: historical, descriptive, and scientific. ये 3 methods हैं. These are the 3 methods. Approaches means method of research. Okay. So this is the syllabus. So the first thing is that before learning, you should have the syllabus on your fingertip. Okay, only then you can do that. And in this paper, I just want to tell you, in this paper, you cannot do the cramming. Okay, you cannot mug up. This is the technical. Okay, so technical hai, with the help of an example, you have to understand, and with the help of an example, you have to learn it. Okay, guys, and this paper is directly related with your thesis work. Okay, then unit 2 में देखो experimental research and design, experimental research and its design. फिर आ गया research report, synopsis, dissertation and thesis. यूनिट 3 में आप ये देखिए correlation. ओके, तो ये 2 मेथड होते हैं इसके. One is given by the Spearman and one is given by the one is Spearman and one more is product movement and rank difference method, Pearson. रिग्रेशन है आपका, ठीक है. एंड यूनिट 4 में आप देखिए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टी टेस्ट है, नल हाइपोथेसिस है, स्टैंडर्ड एरर है, टाइप 1 टाइप 2 एरर है, 1 टेल 2 टेल टेस्ट है, और लास्ट में एनोवा. ओके, दिस इज योर सिलेबस एंड दिस इज योर लास्ट ईयर पेपर. सी योर लास्ट ईयर पेपर. ओके, रीड द क्वेश्चंस. कंपल्सरी में क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च टूल. हाँ, आप पढ़ो इसको, देखो. डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. assumptions of correlation, most important, always ये आता ही है. You should have copy and pen. Okay, लिख लो, नोट कर लो. This is the most important class. Okay, otherwise मेरे वीडियो को पॉज कर लेना, then you can note it. हमेशा आता है. 1 टेल 2 टेल टेस्ट हमेशा आता है ये. यूनिट 1 में देखिए, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल. What are the prominent error in them and how to overcome it, right? How to reduce it, how to overcome it. ये देखो फर्स्ट में फिर हिस्टोरिकल रिसर्च आ गया. अब ये देखो, आपको पता होना चाहिए अंडर द हिस्टोरिकल रिसर्च क्रिटिसिज्म इज इंपॉर्टेंट. हमारे 3 मेथड है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, और एक्सपेरिमेंटल है, राइट? सो गाइज, मैं ऑलवेज आई टेल यू व्हेन यू हैव टू लर्न ना. ओके, सो ऐसा नहीं डायरेक्टली यू स्टार्ट लर्निंग. तो फर्स्ट लर्न योर सिलेबस. तो व्हेन यू लर्न द सिलेबस ना, the whole you will understand and the part you can do the later. Okay, so this is important. अब if you know that, ये देखो आपको पता है, जैसे यूनिट 1 है, देखो see that this is also our exam preparation class. Okay, that's why I'm telling you the tips. Okay, ये देखो, अगर आपको पता है यूनिट 1 में अगर आप ये तीनों मेथड भी करते हैं, ठीक है, तो then also you can cover your unit 1. यूनिट 1 में अंडर द 3 मेथड, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड साइंटिफिक. बट यू शुड नो इट.
व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ए हिस्टोरिकल, इसके अंदर क्या है, डिस्क्रिप्टिव में क्या है, साइंटिफिक में क्या है, राइट। हिस्टोरिकल रिसर्च टॉक्स अबाउट द पास्ट इवेंट्स, डिस्क्रिप्टिव मतलब करंट फिनोमिना, और साइंटिफिक साइंटिफिक मेथड इट टॉक्स अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ओके। और हिस्टोरिकल में ऑलवेज क्रिटिसिज्म इज इंपॉर्टेंट। तो एग्जामिनर है, उसने ही हैज टू पुट द हिस्टोरिकल रिसर्च, तो ही हैज इन द माइंड, यू नो, हिस्टोरिकल रिसर्च में उसने आपकी क्रिटिसिज्म देखनी है, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एक्सप्लेन्ड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड इन द 7 पेजेस, है ना, समटाइम्स यू हैव द क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू द आंसर, and you have filled the seven pages within a half an hour, okay. But criticism, you have filled only the half page, okay, and you are thinking that you will get the full marks. You cannot get a full marks. हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर स्टेप्स और क्रिटिसिज्म ही तो इंपॉर्टेंट है, ओके। बाकी आप उसको लेंदी, अगर तुक्का मार के आपने लेंदी कर दिया, ओके, तो देर इज नो यूज एक्चुअली, बिकॉज एग्जामिनर वांट्स टू से दैट कि इसकी जो क्रिटिसिज्म है वही तो इंपॉर्टेंट है, इंटरनल क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये टेक्निकल पेपर है, दैट्स वाई आई स्टार्टेड फर्स्ट। पेपर 1 और 2 आपका सारा स्कूल एजुकेशन, क्लासरूम में वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो पेपर थर्ड इज इंपॉर्टेंट, ओके। फोर्थ इज ऑल्सो इजी वन, ओके, बट थर्ड इट इज ए टेक्निकल पेपर, और आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही लर्न भी करना है, और मैं भी अंडरस्टैंड आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही करवाऊंगा। अब ये देखो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और डिजाइन कौन कौन से हैं, राइट। रिपोर्ट में क्या फर्क है, वापस आते हैं हम वहां पे, कहां गया, ये रहा, ये देखो, डिस्क्राइब द स्टेप्स। ये मैंने अभी पढ़ा नहीं था गाइस, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, ओके। मैंने अभी यही पढ़ा था, व्हाट इज हिस्टोरिकल रिसर्च, ओके। आगे मैं अभी गया ही नहीं था। तो ये देख लो, मैंने कहा था ना आपको, स्टेप्स और क्रिटिसिज्म ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो, क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म और स्टेप इंपॉर्टेंट है, ओके। इवन ऑनेस्टली द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मैं आई जस्ट रेड ओनली व्हाट इज द हिस्टोरिकल रिसर्च, ओके। मैं आगे गया ही नहीं। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये टेक्निकल चीजें हैं, तो आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। यूनिट 2 में आ जाओ, देखो, यूनिट 2 में इज टॉकिंग अबाउट रिसर्च प्रपोजल एंड रिसर्च रिपोर्ट। इसको हाईलाइट कर देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च रिपोर्ट। अब ऑलवेज आपको पता होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं गाइस सिनॉप्सिस को। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं आपको कॉपी और पेन होना चाहिए आपका, ठीक है, उसमें आप नोट कर पाओ। अगर अभी नहीं है तो वीडियो को पीछे पॉज करके फिर कॉपी पेन लेके बैठो। अब ये जो आपने पेपर 1 में क्या किया था, सेमेस्टर 1 के अंदर, व्हाट हैव यू डन, you have you have in a second sem, you remember that ना, you have submitted the synopsis। तो वो सारा आपका सिनॉप्सिस क्या था, उसी को रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं, ओके। अनदर नेम ऑफ ए सिनॉप्सिस इज रिसर्च प्रपोजल, ओके। और रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, आपका डेजर्टेशन, मतलब ऑल द 5 चैप्टर्स, वो कंप्लीट वर्क होता है रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च प्रपोजल होता है प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग का, दिस इज कॉल्ड साइनॉप्सिस। अब देखो, इफ यू नो कि इसको बोलते हैं सिनॉप्सिस, और ये रिसर्च रिपोर्ट हो गया हमारा थीसिस, तो आप आराम से ये पेपर 4 कर सकते हो, ओके। टेक्निकल है बट इजी है, ये मैं आपको ये बताऊं, ओके। तो हल्का सा अगर आप इसको करो तो, और इसका मैं टेस्ट भी ले रहा हूं, आपको पता है 11th है ना, लास्ट टाइम मैंने कहा था आपको, हाफ आज हम करेंगे, हाफ हमारा 3 4 5 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, ओके। इवन 11 जनवरी से पहले पेपर 4th भी हो जाएगा हमारा। सो 11th को everyone has to present in the class, ओके। तो टेस्ट है आपका यही वाला, ओके, पेपर 3 का। फिर देखो, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो ये 3 तरह के डिजाइन होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, वी विल डिस्कस प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट एंड क्वेसी, ओके, वो भी हम करेंगे। यूनिट 3 में देखो आ गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ये देखो, रैंक डिफरेंस मेथड से उसने कहा है कि इसको सॉल्व करो, बड़ा ही इजी है ये तो, न्यूमेरिकल 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ओके। 5 मिनट के अंदर आपके 16 नंबर, आप देखो, 8 और 8 16 नंबर, 7 और 7 14 नंबर, 70 है ना, 5 14 × 5 70, 14 मार्क्स यू विल गेट इट, ओके। 7 मार्क्स 7 मार्क्स, ये देखो कितना इजी आया है,
पॉजिटिव कोरिलेशन बताना है, नेगेटिव बताना है। पॉजिटिव वो होता है इधर इंक्रीज या डिक्रीज हो एंड सेम पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो। सुनो मेरी बात, राइट? वो ओके, अभी हम करेंगे डिस्कस इस सारा को। उसके बाद रिग्रेशन आ गया, रिग्रेशन की अजम्पशन, इसकी भी अजम्पशंस करना, कोरिलेशंस की याद रखना, और कुछ क्वेश्चंस बनता ही नहीं है, राइट? assumptions of correlation and assumptions of regression is important along with its concept। थर्ड, ये उसने बताया हुआ है, इसका निकालना है हमें, रिग्रेशंस निकालना है, राइट? यूनिट फोर्थ के अंदर देखो, स्टैंडर्ड एरर आ गया, ये दिया हुआ न्यूमेरिकल मैंने कहा था ना आएगा, और उसके बाद एनोवा आ गया आपका। ये देखो, ये एनोवा, एनोवा की एजम्पशंस आ गई, थ्योरेटिकल आ गया और प्रैक्टिकल आ गया। एनोवा निकालो तो एनोवा भी निकाल दोगे, प्रैक्टिकल दो फार्मूले हैं, ठीक है ना? उसके भी मैं आपको नोट्स दे दूंगा, कुछ एक नोट्स ना, आई हैव मेड इट ऑन द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट आई हैव रिटन correlations and how to solve the numerical questions, and then I have made the notes of a ANOVA and how to solve the ANOVA। okay, so you can do that। okay, but abhi first we will finish our starting का theoretical part we will finish, right guys? अब ये बताइए मुझे, ये सारा हमने, दिस इज द लास्ट ईयर पेपर, ओके, लास्ट ईयर पेपर। अब गाइस, if you remember the syllabus, the last year paper is covering your whole syllabus। हाँ, so I suggest to all of you, if you cover the last year paper, trust me, you have covered your whole syllabus। ओके, उसके साथ एक दो क्वेश्चंस और होंगे बस, और कुछ नहीं होगा। बट इफ यू हैव टू कवर द लास्ट ईयर पेपर, तो इट डज नॉट मीन यूनिट वन में आउट ऑफ ए टू यू लर्न ओनली वन क्वेश्चन। ओके, वो तो एग्जाम्स में है ना, यू विल गेट द 50% वेवर। एग्जाम्स में आउट ऑफ ए टू यू हैव टू वन। अभी नाउ यू आर लर्निंग, यू आर प्रिपेयरिंग, बट प्रिपरेशंस में आपको ये दोनों क्वेश्चंस करो। यानी कि इफ आई एम सेइंग दैट द लास्ट ईयर पेपर इज कवरिंग योर होल सिलेबस, तो इट मींस 4 के 4 आपके छोटे क्वेश्चंस एंड 9 8 8 आपके ये क्वेश्चंस, तो टोटल 8 और 4 12, ये 12 क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। तो आपका थर्ड पेपर हो गया आराम से। ओके, so this is a revision class, exam preparation class। okay, so that's why side by side I am telling you the tips। so okay guys, now you have understood about the syllabus, what are the content and last year paper। now I am going to discuss, right? और ये नोट्स में से ही करवा रहा हूं आपको, द नोट्स आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू, द सेम नोट्स, 130 पेजेस 140 पेजेस हैं, आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको, हमारे नोट्स वाले पार्ट में से जो मैंने आपको ऑलरेडी आई हैव गिवन यू। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पेपर, पेज नंबर 3 और 4, माइट भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है? तो आपका यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका। सो फर्स्ट गाइज, वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च। आई हैव zoomed out। ओके, नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम समझते हैं इसको, ठीक है? कुछ एक 50% तो हम आज करते हैं, राइट? सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च टूल? तो फर्स्ट ही इज टॉकिंग अबाउट द टूल। तो रिसर्च टूल, यू शुड नो दैट व्हाट आर द टूल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द अनदर नेम ऑफ द टूल। ओके, देन scale also, you can say that, instrument also, these are the same thing। okay, research tools are the tools that is used to getting the data from the participants। okay, gathering the data, collections the data, the tool are used। ये देखिए, tools, scales, instrument, questionnaires। data collections tool refers to the, ये मैं पढ़ रहा हूं, जो भी मैं ये इसको सिलेक्ट किया हुआ है। डेटा कलेक्शन टूल रेफर्स टू द डिवाइसेस, ईदर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कलेक्ट डेटा, सच एज द क्वेश्चनियर, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यूइंग सिस्टम, case studies, checklist, interviews, observations, sometimes, and surveys are questionnaires or all tools used to collect data। क्वेश्चन हमारा यही था, क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च टूल। तो टूल्स क्या होते हैं?
राइट। टूल्स वो होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टूल वी यूज टू collect the data from the students, from the participants. Okay, anything anything that becomes means of collecting information for your study is called a research tool, research instrument. For example, observation form, interview schedule, questionnaire, interview guides are all classified as a research tool. Okay, this is called the tool. Always remember, tool bhi kehte hain isko. Then we also call the instrument scale also. Okay, questionnaires that is used to collect the data. हमारा क्वेश्चन था characteristics of a good research tool. Guys, always remember there are three characteristics. One is called kabhi bhi, whenever we talk about the good research tool, right? याद रखना ये कोई theoretical या simple paper नहीं है, ये technical paper है, and we are talking about the research methodology. Okay, don't take it as a like a English, simple English. Okay, so the meaning would be different here, right? Characteristics of the good research tool means there are three characteristics of the good research tool. One is reliability या validity कह लो. Second is reliability. Third is usability. Yeah, right? Practicability. ये देखो ये लिखा हुआ है. What are the characteristics of a good research tool? ये देखिए तीन होते हैं, right? Validity, reliability and usability. Okay, जिसको हम practicability भी बोलते हैं, number third, right? अब guys, if you have seen, one picture I have given, you can see in your notes also, watch. So with the help of a watch, I explain this example, all the 3 points would be cleared, right? Ab, there is a watch. For example, you all have the watch. And your watch, listen me carefully, and you have the watch, your watch is giving the wrong time. Every time. Your watch is giving the wrong time every time. For example, when you see in the morning, it is giving the wrong time. When you see after a 1 week, it is also giving the wrong time. When you see the time after 1 month, your watch is also giving the wrong time. Even after a 1 year, it is giving the wrong time. And actually, what was the wrong time? Your watch was 5 minutes late. It is showing the time 5 minutes late. Okay. So when you see your watch today, so it is showing the time 5 minutes late. Tomorrow again you show, it is also showing the 5 minutes late. After 1 week, you see your watch, it is again showing the time 5 minutes late, wrong time. Okay. After 1 month, even after 1 year. Okay. So guys, do you know that? Can you say that? Can you believe that your watch is reliable? But we are doing the research methodology. Technical terms hai. According to the research methodology, we have to understand. So the answer is your watch is reliable. Okay. So why it is reliable? Because your watch is giving the time 5 minutes late now. It is reliable because every time when you see in the today, after 1 week, after 1 month, after 1 year, always it is showing the 5 minutes late. Anna, it is never happening. Today it is showing 5 minutes late, and tomorrow 10 minutes late, and after 1 month 20 minutes late. Anna, every time it is showing the 5 minutes late. So guys, basically your watch having the characteristics of consistency. Consistently, your watch is showing the 5 minutes late, so it is reliable. तो हम क्या कर रहे थे? What was our question? What are the characteristics of good research tool? Okay. So guys, I again request to all of you, and even I tell all of you, advise to all of you, don't learn this paper as कि आप उसको मगअप कर लोगे, क्रैमिंग कर लोगे, ऐसे याद नहीं होगा, राइट? ये टेक्निकल पेपर है, टेक्निकल वे से ही याद होगा इसका. ओके. इवन इफ यू ओपन यूर पेपर 1 नोट्स, ओके, सेमेस्टर 1 में पेपर 1 हमने किया हुआ है, उसमें था हमारा कंटेंट्स था व्हाट आर द रिसर्च टाइप्स क्या थी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च. ओके. फिर उसमें था हाइपोथेसिस, सैंपलिंग. ओके. और फिर उसमें था स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्शन स्टैटिस्टिक्स.
descriptive statistics. Or here in the third semester, it is called the inferential statistics. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या था, व्हाट वर कंटेंट, उसमें ये था आपके ग्राफ थे, चार्ट्स थे, हिस्टोग्राम थे, है ना, हाउ टू मेक इट, यही था. अब ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आ गई थर्ड सेमेस्टर में. इसमें क्या है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एनोवा. ओके, इट मींस इन्फ्रेंशियल मींस रिजल्ट ओरिएंटेड, डिस्क्रिप्टिव मींस यू कैन लर्न दैट, बट हियर यू हैव टू सॉल्व इट. ओके, सो वॉच रिलायबल होगी आपकी, तो दिस इज कॉल्ड रिलायबल. तो हियर ओके, वेन एवर यू हैव टू एक्सप्लेन द सेकेंड वन, रिलायबिलिटी, so you have to write, okay, consistency of the tool. Okay, this is called the reliability. Up now, validity. How we have to understand the validity? Validity means, again, you know, we learn with the help of the watch. Watch, for which purpose we use the watch? We use the watch for looking the time, for watching the time. Okay, for watching the correct time. Okay, for getting the exact time. This is a watch. And you know, we have to measure the temperature. For example, I take the name of the watch. So already you have in the mind, na? It is rated with the time. Now I am talking about thermometer. So what it comes in your mind? Might be measuring the temperature. Okay, so another device, for example, stitching machine, है ना, तो आपको आ गया, okay, we have to stitch any of the cloth. So basically these are different types of tools, okay, and are designed for particular things. So when the tools are designed for a particular thing, when the instrument are designed for a particular thing, this is called the validity. For example, अब आ जाओ इसके उसमें explanations में. Okay, सबसे पहले हम reliability ही करते हैं जो हमने किया था. Reliability means, ये देखो, it means the extent to which research instrument means tool, is dependable, consistent and stable. Watch आपकी stable थी every time. If you see the time after 1 month, after 1 years, it was stable, it was consistently giving the wrong time. टाइम से छोड़ो, पर वो कंसिस्टेंट तो थी ना, दैट्स वाई रिलायबल, टूल आपका रिलायबल होगा. द मीनिंग ऑफ ए रिलायबिलिटी इज एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी. ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, लोग पीएचडी तक कर लेते हैं, उनको रिलायबिलिटी वैलिडिटी का कई बार नहीं पता होता, राइट. द मीनिंग ऑफ ए रिलायबिलिटी इज एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी. ऑल्सो इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट इज कंसिस्टेंट, स्टेबल एंड डिपेंडेंट. इन अदर वर्ड, द टेस्ट अप्रूव्स व्हाट इट प्रेजेंट्स. ठीक है, एंड अब आ जाओ इसका वैलिडिटी. वैलिडिटी मीन्स, it means the degree to which a test or measuring instrument measure what it intends to measure. अब एक्चुअली एक और एग्जांपल देता हूं आपको. You want to check the IQ level of the student and you are using the personality test, तो ये wrong हो गया. You are using the creativity test to check the IQ level of the student, so it is wrong. वो test is not valid. Okay, although it matches with your content, but if for checking the IQ intelligence test is used, then you have to use the intelligence test. Only then you can check the accurate IQ level of the student, right? For example, if you know the exact time, the watch is used. If you know the temperature, then you use the thermometer and other devices, right? So that means the degree which a test or measuring instrument measures what it intends to measure, this is called validity. Okay, reliability भी पता लग गया, validity और usability तो easy है. Usability means practicability, right? ये अब सारा पढ़ लेना आप अपना. Okay, ये देखो reliability, because what is my purpose here? To clear your content, to clear the concept, okay, but in detail you have to learn it, okay, and you have to give the test. Only then you can say that you will get a very good marks, right?
ये देखो, यूजेबिलिटी मीन्स प्रैक्टिकेबिलिटी. इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट कैन बी यूज्ड विदाउट मच एक्सपेंडिचर ऑफ ए मनी, एफर्ट एंड टाइम. मोस्ट नोट वर्दी इट मीन्स प्रैक्टिकेबिलिटी. तो इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी होगी, राइट. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च डिजाइन एंड रिसर्च मेथड. ओके, तो याद रखना ये टर्म रिसर्च डिजाइन है, रिसर्च मेथड है. ओके, तो यू शुड नो इट. रिसर्च डिजाइन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए रिसर्च डिजाइन? रिसर्च डिजाइन मीन्स, रिसर्च डिजाइन इट इज ए प्लान टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन. दिस इज द रिसर्च डिजाइन. और रिसर्च मेथड क्या है? इट इज ए स्ट्रेटेजी यूज टू इंप्लीमेंट दैट प्लान. ओके, वह सिनॉप्सिस आपने सबमिटेड करवा दिया सेकंड सेमेस्टर में. ये सेकंड है आपका, थर्ड है? ये थर्ड चल रहा है. सेकंड में आपने यू हैव सबमिटेड अ सिनॉप्सिस. ओके, लर्न द कंटेंट ऑफ सिनॉप्सिस. क्या था? You have made the research design. Under the research design you have written, I will use the sampling, simple random sampling. I will use the 200 students, right? I will use this method. तो क्या था वो? That was the research design. Plan to answer your research question. रिमेंबर, सिनॉप्सिस निकालो आप अपना, तभी तब जाके और अच्छे से याद होगा. व्हाट आर द कंटेंट ऑफ सिनॉप्सिस? अब आपको ऑरली याद होनी चाहिए सिनॉप्सिस के कंटेंट, राइट. इंट्रोडक्शंस था, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर था, फिर उसके बाद आपके थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर स्टडी था, हाइपोथेसिस ऑफ योर स्टडी था, फिर रिसर्च डिजाइन था, फिर सैम्पलिंग था, फिर उसमें विच सैम्पलिंग यू आर यूजिंग, है ना, फिर आपका सैंपल साइज क्या था, राइट, है ना, हैव यू रिमेंबर ना. एंड लास्ट में यू हैव रिटन द डिलिमिटेशन, है ना, रिमेंबर इट ना. तो ये थे आपके 10-12 पेजेस का बनाया था आपने. तो वो रिसर्च डिजाइन में आपने अपना व्हाट वाज योर प्लान यू हैव रिटन इन योर रिसर्च डिजाइन. दैट्स व्हाई बेस्ड अपॉन योर सिनॉप्सिस यूनिवर्सिटी अप्रूव्स यू टू गो फर्दर. और रिसर्च डिजाइन इज ए प्लान टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन. और ये रिसर्च मेथड क्या चीज है? इट इज यूज टू, इट इज ए स्ट्रेटेजी प्लान यूज टू इंप्लीमेंट दैट प्लान. अभी आपके 3 मेथड हैं, तो वो रिसर्च मेथड है सिलेबस के अंदर. कौन सी है मेथड? हिस्टोरिकल मेथड, डिस्क्रिप्टिव और साइंटिफिक मेथड. ओके, ये वही दिया हुआ रिसर्च डिजाइन. अब ये आ जाओ अप्रोचेस टू रिसर्च. अब ये फर्स्ट यूनिट भी चल रही है आपका, अप्रोचेस टू रिसर्च है ना. तो उसके अंदर 3 मेथड है, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और साइंटिफिक. ये देखो, ये सारे नोट्स मैंने बनाए हैं, उस नोट्स को ही और बढ़िया बनाया ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको लर्न भी कैसे करना है. हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब हो गया हिस्टोरिकल मेथड, पहले तो बात ये है. ओके, एंड अप्रोचेस टू रिसर्च का मतलब भी यही है, मेथड ऑफ रिसर्च. ठीक है, तो 3 ही मेथड है. लेकिन रिसर्च के अंदर, अंडर द रिसर्च मेथोडोलॉजी देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स. बट इन योर एमएड सिलेबस थर्ड सेमेस्टर देयर आर 3 मेथड. 3 मेथड करने हैं आपके. कौन कौन से? देखो इसको क्या लिखा है, हिस्टोरिकल रिसर्च, देन डिस्क्रिप्टिव, देन साइंटिफिक रिसर्च. ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च मींस पास्ट इवेंट. Again I will clear the concept with the help of an example, because without example you can't proceed. ये टेक्निकल पेपर है आपका. ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब रिपोर्टिंग द पास्ट इवेंट्स, डिस्क्रिप्टिव मींस करंट फिनोमिना, और साइंटिफिक मींस कॉज एंड इफेक्ट. अब आप समझो इसको पहले तो, बिफोर गोइंग फर्दर. अब एक्चुअली you all are watching this lecture, है ना. I don't know, okay, you are the student of MEd and PhD. Okay, so some are making the thesis also, है ना. You are working on your research topic also. Okay, making the, some are making the synopsis and others. Okay, I directly come on the point. I'm talking about, learn your research topic in your mind. आपका रिसर्च टॉपिक क्या है?
राइट, आपका टॉपिक होगा कोई ना कोई रिसर्च टॉपिक। अरे सिनॉप्सिस तो आप सबमिट करवाई दिया ना आपने सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है, राइट, तो आपको सभी को पता होगा रिसर्च टॉपिक क्या है आपका। अब उसके अंदर नाउ यू हैव टू राइट द 5 चैप्टर्स, राइट, वो सारे 5 चैप्टर्स को वी कॉल एज ए थीसिस या डेजिटेशन, राइट। उसमें यू नो सम ऑफ द आप ऑल ऑफ यू, ओके, सभी का डिफरेंट होता है, पहली बात ये है। एंड ऑल ऑफ यू, सम आर यूजिंग द, some are talking about the, for example, your research topic is related with the past event. Let's say example, you want to research the teachings of Lord Jesus. Okay, so when the Lord Jesus came 2000 years back, so this is a historical na. So if the our research topic is we want to study the teachings of Lord Jesus. So guys, it is 100%. The correct methodology is that, the correct design is that, right? We will use the historical research. If I have to make the synopsis, first of all, I have selected the topic teaching of Lord Jesus. Okay. Now the first step is I have to submit the synopsis. The synopsis will approve by the university. Then after that, now I can make the dissertation. So I have made the synopsis. The topic was teaching of Lord Jesus. But in the synopsis, I will write the method now. So I will use a historical method. Right? So I cannot claim that I will use the scientific method. तो क्या होगा, मेरा रिसर्च गलत हो जाएगी। समझ गए ना, डिस्क्रिप्टिव कर ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु केम 2000 years बैक। गॉट इट ना, उसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, याद रखना। मोस्टली पीएचडी वाले क्यों फेल हो जाते हैं पर्सन, बिकॉज दे डोंट हैव द स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ ए आरएम। जैसे होता है ना, टू बिकम ए टीचर यू शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ ए फिलोसफी, साइकोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, right? And similarly, for the research, even for the teacher principal, you should have a good research attitude. Okay, आपको, because after doing the med you are going to become principal, और who is the principal? Principal is the administrator. तो principal को तो from starting से last she has to take care of everything in the mind. So naturally, without the research aptitude, you cannot become a good administrator. Mind it. Okay, right? Because if you don't have the good knowledge of a RM means research methodology, ये आपकी research methodology चल रही है, ओके, तो और आपका वो सारी रिसर्च फेल हो जाती है। सो हिस्टोरिकल रिसर्च टॉकिंग अबाउट दी एनी थिंग्स हैपेंड बैक, डिस्क्रिप्टिव मींस करंट फिनोमिना, और साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है? साइंटिफिक रिसर्च talks about to see the causal effect relationship, cause and effect. Okay, for example, scientific research में the topic, for example, too much consumption of liquor effect on the liver. Huh? If the persons they are consuming more liquor, तो liquor will affect on the liver, तो cause effect आ गया ना। तो if you want such kind of a study, तो you will use the scientific research. Got it? तो तीनों की मैंने एग्जांपल दे दी है। अब इसको हम करते हैं, तीनों क्या क्या होते हैं ये देखो। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, this method is employed by those researcher who are in those researcher आप researcher हो, those researcher who are interested in reporting events or conditions that occurred in the past. An attempt is made to establish fact in order to arrive at conclusion concerning past event or predict future events. Okay, होगी क्लियर आपको? डिस्क्रिप्टिव आ जाओ। Descriptive, it is used to obtain information concerning the current status of phenomena, to describe the current, okay, what exists with respect to the variable or condition in a situation. The main goal of this type of a research is to describe the data and the characteristics about what is being studied. The present, you're talking about the present problem, then use that descriptive research, okay. बाकी ये सारा पढ़ लेना आपको, ठीक है, मैं मेन आपको समझा रहा हूं उसमें, राइट, सो दैट होल ऑफ द सिलेबस, ओके, यू विल टच इट, राइट, बट इन डिटेल में यू हैव टू लर्न इट, ओके, ओनली देन, ओके, यू कैन मेक योर माइंड
regarding, RM. Experimental research. Experimental research refers to the research where the researcher manipulates the variable to come to an conclusion or findings. Here क्या करता है रिसर्चर ना, manipulate the variables. It is useful in finding out the cause effect of a causal relationship and correlation. Right? ये देखो और क्या होता है, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रिसर्चर research the things mainly in closed environment or laboratory and result the best output of it. तो इनका लेबोरेटरी वगैरह में एक्सपेरिमेंट जब होता है वो होता है. अब ये देखो, ये आपको तीनों समझ आ गए ना, राइट? क्लैरिटी होगी ना. आई हैव आल्सो गिवन यू द एग्जांपल, राइट? नोट्स भी ऑलरेडी गिवन टू यू, एक्सप्लेन भी कर दिया. अब गाइस आपको पता है या हिस्टोरिकल रिसर्च पूरा आएगा या डिस्क्रिप्टिव आएगा या साइंटिफिक आएगा. ओके, कोई भी आप कर सकते हो इजिली. उनमें डिफरेंस आ गया, ये देखो डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो डिफरेंस भी यू कैन डू दैट, एक्सपेरिमेंटल एंड डिस्क्रिप्टिव, राइट? ये तो डिस्क्रिप्टिव के डिफरेंस के 10 पॉइंट दिए हुए हैं, राइट? ओके, अब आ गया क्वेश्चन हमारा अजम्पशंस ऑफ कोरिलेशन, राइट? ये फर्स्ट हम लास्ट ईयर का पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद एडिशनल नोट्स भी हैं. टोटल आई हैव गिवन यू आई थिंक 130-140 पेजेस, राइट? स्टार्टिंग के 60 और 70 पेजेस में लास्ट ईयर पेपर आई हैव सॉल्व एंड रेस्ट ऑफ द 60 और 70 पेजेस में वो नोट्स हैं आपके, राइट? तो टोटल आपका कवर कर रहे हैं सारे. अजम्पशंस ऑफ कोरिलेशन, ओके. तो इसको हम, इसके लिए मैंने आपकी पीपीटी भी बनाई है, पीपीटी से भी अंडरस्टैंड करेंगे हम, ठीक है? तो ये अजम्पशंस ऑफ कोरिलेशंस की क्या चीज है, राइट? डिग्री ऑफ कोरिलेशंस क्या चीज है, फिर उसके बाद कोरिलेशंस की टाइप्स क्या चीज हैं, तो ये सारा हम कवर करते हैं, ठीक है, फ्रॉम दी पीपीटी. ओके, तो एक पीपीटी भी बनाई हुई है मैंने आपको क्लैरिटी के लिए. कोरिलेशंस, ये देखो कोरिलेशंस क्या चीज है, व्हाट इज ए कोरिलेशन. अब ये देखो, ये हमारा यूनिट 3 वाला पार्ट कवर अप हो रहा है. The concept of correlation. Correlations mean associations or relationship between two variable. उसको correlations बोलते हैं. For example, too much demand. Too much demand affects on the price. Naturally, it is clear affects on the supply. Supply कह लो, right? So relationship between two variable. दो variable में relationship है ना? So this is called the correlations, right? Correlation means it refers to a process for establishing the relationship exist between two variable. कोई भी दो वेरिएबल का आपस में कोई भी रिलेशनशिप है, इफेक्ट है, रिलेशनशिप है, तो वो दैट बिकम्स ए कोरिलेशन, राइट? अब जैसे जस्ट आई हैव गिवन यू द एग्जांपल, टू मच कंजम्पशन ऑफ ए लिकर अफेक्ट्स ऑन द लीवर. तो कोरिलेशंस है लीवर का उसके साथ. तो लीवर वाला, एक जिसका लीवर खराब होगा जाएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसको बोलेगा पहले तो अपना वाइन पीना कम कर, राइट? कोरिलेशन है. प्राइस का सप्लाई के साथ कोरिलेशन है, डिमांड के साथ भी होता है. तो अकॉर्डिंग टू द लैथरोप, कोरिलेशन इज ए ज्वाइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. ओके, अब हम करते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन. एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, राइट? व्हाट इज द पॉजिटिव कोरिलेशन? If increases, positive correlations ki I am talking about, if increases or decreases in one variable correspond to the increase or decrease in other, the correlation is said to be positive correlation. For example, mobile. Take the example of a mobile. The price of mobile is increasing, right? और प्राइस का इफेक्ट पड़ रहा है, सपोज करो प्राइस का इफेक्ट पड़ रहा है सप्लाई पे. Okay, if price is increasing, supply is also increasing. If price is decreasing, तो supply is decreasing. For example, ठीक है, प्राइस को डिमांड के साथ भी आप मिला लो. Means if one variable either goes into the positive, either comes into the negative, and the other variable it corresponds vice versa. If it is goes positive, then goes positive. Then if the one variable comes in negative side, another variable comes in negative side, that correlation is said to be the positive. एग्जाम्पल मैंने प्राइस एंड सप्लाई दिया हुआ है. कोई भी ले लो, आप मोबाइल ले लो. टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए मोबाइल. इफ द प्राइस ऑफ मोबाइल इज इंक्रीजिंग और दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, सप्लाई इज इंक्रीजिंग,
तो वो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव. एंड इफ प्राइस इज डिक्रीजिंग एंड सप्लाई इज आल्सो डिक्रीजिंग, उसको भी हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे. क्लियर? नेगेटिव कोरिलेशन. Negative correlation is a relationship between two variables in which one variable increases as the other decreases. हाँ, अब क्या हो रहा है? The price of a mobile is increasing, but demand decreasing, right? उसका अलग इफेक्ट पड़ रहा है. तो this is called the negative correlation. Zero correlation means if change in one variable does not affect does not other, then there is no or zero correlation. मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो उसको हम बोलेंगे जीरो कोरिलेशन. ओके, डिटेल में अपने नोट्स में से याद कर लेना इसको, ठीक है? अब ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट. हियर वी विल टॉक अबाउट द कोफिशिएंट, जो हमें इट टेल्स अस हाउ मच थिंग्स आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं. ओके, सो व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट? व्हाइल कोरिलेशन, ये देखो, ये फर्स्ट थर्ड थ्री लाइंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाइल कोरिलेशन स्टडीज हाउ टू एंटिटीज relate to one another, a correlation coefficient measures the strength of the relationship between the two variable. ओके, मतलब जो जो कोफिशिएंट है, व्हाट इट डज, जो कोरिलेट कोफिशिएंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिस्क्राइब्ड बाय आर. ओके, और डिनोट्स बाय आर. तो इट टेल्स हाउ मच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड विद ईच अदर, एग्जैक्ट पॉइंट. ओके, और इसकी लेंथ को भी समझना होता है हमें, इसका रेंज. दो तरह के हैं आपके सिलेबस के अंदर, मोस्टली दो ही होते हैं. वन इज ए पियर्सन कोरिलेशन, सेकंड इज ए स्पीयरमैन. ये दीज आर द नेम ऑफ द पर्सन. पियर्सन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन. वन पर्सन, द नेम इज एजुकेशनिस्ट पियर्सन. ही गेव द कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसको बोलते हैं पियर्सन. दूसरा का स्पीयरमैन, इट इज आल्सो ए नेम ऑफ ए पर्सन. पियर्सन कोरिलेशन मीन्स most commonly used measurement for a linear relationship between two variables, ranges from +1 to -1. कोई स्ट्रेट लाइन, मतलब लीनियरली कोई हमें रिलेशनशिप देखना है, इधर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वी यूज द पियर्सन कोरिलेशन. अगर हमें कोई कर्व वाइज देखना है तो देन वी यूज द स्पीयरमैन कोरिलेशन. ओके, वो देखो लास्ट में लिखा भी हुआ, लास्ट लाइन, changes in x does not corresponds with constant change in y, राइट? अब मेथड आ जाओ इनके क्या होते हैं, ठीक है? ये आपको याद करने हैं फॉर्मूले. ये देखो, बचपन से हम याद करते आ रहे हैं ये, ठीक है ना? टू मेथड्स दैट आर प्रिवेलेंट एंड इंपॉर्टेंट. वन इज रैंक ऑर्डर मेथड, ये दिया है स्पीयरमैन ने. अभी किए थे ना हमने लास्ट पीछे, स्पीयरमैन, पियर्सन एंड स्पीयरमैन. रैंक ऑर्डर मेथड दिया है स्पीयरमैन ने. So if the question comes, find out the relation coefficient of a correlations by using the rank order method, तो आपने you have to put the Spearman method. ये मेथड को याद कर लो, ओरली याद है हमें, तो बचपन से याद करते आ रहे हैं. 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1, राइट? दूसरा है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, वो पियर्सन का है. इसमें होता है मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड डिनोटेड बाय आर. तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल के नोट्स भी दूंगा आपको, डोंट वेरी, ठीक है? पर थ्योरेटिकल तो आप कर लो तब तक, राइट? ओके, वापस हम चलते हैं अपने उस नोट्स पे, ठीक है? ये हमें समझ आ गया कोरिलेशन. अजम्पशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये देखो, ये सारा हमें समझ आ गया है ना, सारा हमने कर लिया. ये एग्जाम्पल अजम्पशंस देखो क्या है. ये है 6-7 अजम्पशंस हैं, 5 है, इसको याद करना है. ओके, अजम्पशंस मतलब होती है, सपोज फॉर एग्जाम्पल we cannot directly find out the correlation coefficient. First of all, हमें some of the assumptions which we have to keep in our mind, उसी में correlation निकलेगा. आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेटा ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट गलत ही आएगा. तो ये assumptions होती हैं. ओके, मतलब टू फाइंड आउट द कोरिलेशन कोफिशिएंट, फर्स्ट वी हैव टू keep this mind these assumptions. क्या क्या है? नंबर 1,
दो वेरिएबल, वेरिएबल तो दो ही है ना, उसी में होता है कोरिलेशन। योर टू वेरिएबल शुड बी मेजर एट इंटरवल और रेशियो लेवल, दे आर कॉन्टिन्यूज। सेकेंड अजम्पशन क्या है, इसको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी आपको। देयर नीड्स टू बी ए लीनियर रिलेशनशिप, उनके अंदर लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। थर्ड क्या है, देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट आउटलायर। आउटलायर होता है कोई भी एरर या कोई दूर कोई आउटलायर, मतलब रेंज है 1 से 100, आप दे रहे हो 200, 300, ओके, रेंज सी 1 to 100, तो वो आउटलायर हो जाते हैं। तो आउटलायर, देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट आउटलायर। ये सारा आपको याद करना है, ठीक है। मैं तो एक एक लाइन में आपको, आई एम क्लियरिंग द कंसेप्ट। चौथा आपका, डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और पांचवें assumptions क्या है, यू विल ऑल्सो नीड टू शो दैट द डेटा हैज होमोस्कैडिसिटी, राइट। इसका मतलब होता है होमोजेनिटी, राइट, इक्वल इंटरवल में हो, सेम, राइट, तभी हम assumptions कर सकते हैं। ओके, तो एक अभी हम ना लॉन्ग क्वेश्चंस भी कर लें, राइट गाइस। यूनिट 1 का एक क्वेश्चन है लॉन्ग, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए रीडिंग स्केल, what are the prominent errors in them and how you will overcome there, okay। आप भी एक बार क्वेश्चंस पढ़ो, ओके, 2 times in your mind। सबसे इजी क्वेश्चन है, कुछ टर्म्स अगर आपको समझ आ गई ना, तो ये पेपर 3 इज वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चंस है। ही इज टॉकिंग अबाउट, टेल मी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ए रेटिंग स्केल, और उनमें एरर कैसे आती है, एंड हाउ वी रिमूव द एरर। ठीक है जी। तो रेटिंग स्केल क्या होता है, रेटिंग स्केल होता है टू रेट समवन। ये भी देखो, ये वही है, क्या है ये, टूल है। अभी हमने किया था ना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च टूल, तो रेटिंग स्केल भी एक टूल है, रेटिंग स्केल भी एक स्केल है, ओके। रेटिंग स्केल भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ये भी होता है ना, इट इज यूज टू गैदर द डेटा वेन एवर यू परचेज ए मोबाइल और एनी ऑफ द एंटिटी, ओके। तो वो ऑप्शंस नहीं आ जाते हैं, सर आप प्लीज इसको बताइए, ओके, हाउ मच, ओके, इसके ऑप्शन, टच स्क्रीन, इसका प्राइस, वेदर यू आर एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड। तो वो चीजें आपको बतानी है इसके अंदर। रेटिंग स्केल क्या चीज है, रेटिंग स्केल इज ए कॉमन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन दैट इज यूज्ड टू गैदर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक रिसर्च सब्जेक्ट। जब आपको ना कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए ना अबाउट ए स्पेसिफिक रिसर्च सब्जेक्ट की, देन यू यूज अ रेटिंग स्केल। Specifically, a rating scale is a type of a multi-choice question and it allows survey respondent to assign a value to produce to a product or a service, है ना। I have given you the example। ये देखो, ये रेटिंग स्केल है, राइट, ये सारे 1 से लेकर 10 तक। तो अब आ गए टाइप्स ऑफ, अब आपको हर तरह के रेटिंग स्केल्स के बारे में बताना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल, यही था ना हमारा क्वेश्चन, ये देखो, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ रेटिंग स्केल, एरर क्या है और हाउ टू रिमूव दैट एरर। तो पहला तो होगा न्यूमेरिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल क्या करता है, इट इज अ टाइप ऑफ ए रीडिंग स्केल दैट रिक्वायर द रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड हिज और हर फीडबैक इन टर्म्स ऑफ ए न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये देखो साथ में मैंने बताई भी हुई है, ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज, ओके। सेकेंड है लिकर्ट स्केल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही मोस्टली यूज होता है। लिकर्ट एक पर्सन का नेम था, ओके। ये देखो 1932 में रेनिस लिकर्ट था, साइकोलॉजिस्ट था, इसने ये डेवलप किया था। ए लिकर्ट स्केल इज ए साइकोमेट्रिक स्केल commonly involved in a research used to represent people's opinion and attitude to a topic or a subject matter। अब देखो हमारी रिसर्च मोस्टली न्यूमेरिकल होती है ना। रिसर्च क्वालिटेटिव भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग टीचर हो, आप लोग प्रिंसिपल्स हो, ठीक है, या गोइंग टू बिकम टीचर और प्रिंसिपल, ओके। सो मैंने आपको, आई वांट टू चेक योर बिहेवियर, okay, I want to how is your behavior towards the student, towards your job, okay, so I can check it, how I can check it with the help of the Likert scale, right। Likert आपका ओपिनियन है, ओपिनियन तो मैं न्यूमेरिकल तो कैसे चेक करूंगा मैं, आई कैनॉट चेक ना न्यूमेरिकली,
राइट। तो ओपिनियन और एटीट्यूड विद द हेल्प ऑफ ए लिकर्ट स्केल ही है। मतलब व्हाट आई विल डू दैट, आई विल मेक ए क्वेश्चनियर, 10 क्वेश्चंस आई विल मेक इट, राइट। आप पॉजिटिव है आपका बिहेवियर, नेगेटिव है आपका बिहेवियर, राइट। आपके अंदर गुस्सा कितना है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, राइट। आप वट एवर यूर पर्सनैलिटी इज, आई कैन मेक इट विद द 10 क्वेश्चंस, ओके, एंड आई कैन चेक इट, राइट। आई विल गिव यू टू फिल इट। आप कुछ भी कर लीजिए, आंसर तो आपको देना ही होगा आगे, लिकर्ट स्केल, क्योंकि वो 3-4 होंगे आगे ऑप्शंस, राइट। तो ऐसे हम चेक करते हैं। तो ऐसे तभी तो ये जरूरी है टीचर और प्रिंसिपल्स के लिए, ठीक है ना। ये देखो इसमें होता है सेटिस्फाइड, नेवर सेटिस्फाइड, ये देख लो, ये रहा लिकर्ट स्केल, यही होता है ना। ये देखो कोई भी चीज है, वेरी सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, है ना। कुछ भी रिलेटेड विद दी, आपका कुछ क्वेश्चनियर तैयार हो सकता है आपके, चेक योर ओपिनियंस एंड बिलीफ। ये एडवांटेजेस करने हैं आपको, डिसएडवांटेजेस करनी है। फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी स्केल होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स हैं, वो आपको बताने हैं, जो आपको लर्न करने हैं। इट इज ए यूज टू मेजर द नंबर ऑफ ए अकरेंस ऑफ ए असर्शन और ए स्टेटमेंट। ये देखो, फिर कंपैरेटिव स्केल हो गए। ये क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। दिस टाइप ऑफ रेटिंग स्केल अलाउ अ रिस्पोंडेंट टू रेट हिज और हर प्रेफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ ए डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और स्पेसिफिक आइटम। देखो इफ यू हैव ए दिस नॉलेज ना, अब ये नॉलेज आपकी टीचिंग से रिलेटेड है, डू यू नो दैट। हाँ, दैट्स वाई ना, टीचिंग डज नॉट मीन दैट कि टॉपिक आ गया जी, बुक में से टॉपिक देख लिया और पढ़ा लिया, ये टीचिंग नहीं होती है। तो ये ऑल द मेथड्स एवरीथिंग ये करती है। मीन्स इफ यू नो द आरएम ना, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड यूर स्टूडेंट वेल। टीचिंग होती क्या चीज है, डू यू नो व्हाट इज टीचिंग। टीचिंग हमेशा याद रख लेना, टीचिंग का मतलब होता है टू नो द चाइल्ड फर्स्ट, ओके। इफ यू हैव ए 30 स्टूडेंट्स इन यूर क्लास, और you have the knowledge to know the your subject first, subject means student first, okay। अब ये नहीं कि उसकी एक ही चीजें पता है, मतलब उसकी फिलोसफीज क्या है, उसकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइक क्या है, साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट, ओके। अलोंग विद दैट आपका टीचिंग लर्निंग, हाउ 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 यू टीच टू द स्टूडेंट, ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर आपको इफ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके गाइस, हाउ यू कैन टीच टू द स्टूडेंट। आपने देखा होगा कई टीचर्स होते हैं वो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग पढ़ाते रहते हैं। हमें अपने अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना ये फील्ड के अंदर, हमें इस फील्ड में वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, और अपना काम कैसे निकलवाना है ये टीचर के पास हुनर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं। इफ यू डोंट हैव दैट रिसर्च एटीट्यूड, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट ए गुड टीचर और प्रिंसिपल। तभी तो ये चीजें कंपलसरी हुई हैं। ये देखो मल्टीपल चेक टू बॉक्स, स्टार रेटिंग स्केल, ये पर्पस यूजेस कर लेना, एडवांटेजेस भी कर लेना रेटिंग स्केल के, ओके। हम इंपॉर्टेंट करते हैं सेकंड वाला पार्ट, व्हाट आर द एरर्स एंड हाउ विल यू रिमूव द एरर्स, ओके। अब ये देखो, अब आपको डू यू नो कि दीज आर द रेटिंग स्केल्स एंड आई हैव टू get the data from the students, right? But guys, you have to keep something in your mind, some instructions, some important points, okay? Otherwise data would be wrong। क्या क्या है, क्या एरर आते हैं और हाउ टू रिमूव इट। ये देखो रिसेंसी एरर, ये क्या होता है, द रिसेंसी इफेक्ट अकर्स व्हेन ए रेटर, आप रेटर हो, गिव्स greater weight to recent events when praising an individual performance। Got it? कोई स्टूडेंट है, उसकी आप परफॉर्मेंस उसको आप चेक कर रहे हो, ओके, तो आपने उसको वेटेज ज्यादा दे दी है, रिसेंसी एरर आ गया। सेंट्रल टेंडेंसी एरर, अप्रेजर आप हो, हु रेट द एम्प्लॉई या स्टूडेंट कह लो विद इन ए नैरो रेंज, यूजली द मिडल और एवरेज, कमिट ए सेंट्रल टेंडेंसी एरर। अब आप बच्चों का कुछ है, रिसर्च है, आप लेना चाह रहे हैं, आपने उनकी, यू हैव सिलेक्टेड ए नैरो रेंज, यूजुअली इन मिडल और एवरेज, कमिटेड, सेंट्रल टेंडेंसी एरर आ जाता है। लीनियंसी एरर,
इसको समझ लो, इससे आपका ना कंसेप्ट वुड बी क्लियर। लीनियंसी, ठीक है, इसको मैं टीचिंग में ही समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल समटाइम ना यू आर ए लीनियंट टू ए पर्टिकुलर स्टूडेंट, आप उसको पास कर देती हो, राइट? तो बेसिकली यू आर डूइंग ए रॉन्ग विद द स्टूडेंट। ये देखो समटाइम क्या होता है, every evaluator has his value system which acts as a standard against which appraisal are made. Some evaluator mark high and others low. ये होता है हेलो इफेक्ट। ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द हेलो इफेक्ट अकर when a manager rates an employee high or low on all items because of the one characteristics, है ना? आप इसको अपने टेक द एग्जांपल ऑफ एज ए एजुकेशन सिस्टम। आपकी क्लास है, ओके, एक स्टूडेंट है, ओके, स्टूडेंट इज ही और शी स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश, ओके, एंड शी ऑलवेज और ही ऑलवेज रिस्पेक्ट्स यू, एंड यू आर in every field you are giving a first division, first division, first division. Why? Because of the two things, because he or she speaks good English, आपका student, and he respects or she respects you. This is called the halo effect. अरे वो इंग्लिश में करेक्ट था, might be he or she is not good in mathematics, okay, बट क्या हो गया, बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर, आप उसको मैथमेटिक्स में भी आप पास कर रही हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल, ओके, सो यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, राइट? फॉर एग्जाम्पल इंटरनल मार्क्स, यू आर गिविंग द इंटरनल मार्क्स, तो आप उसको दे रही हैं, तो गाइस उसकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ता है। ये देखो फॉर एग्जाम्पल, वो कहता कहता शी इज टॉल सो शी इज इंटेलिजेंट, हाउ इट इज पॉसिबल, राइट? इसको हेलो इफेक्ट बोलते हैं, राइट? शी इज टॉल, शी इज ब्यूटीफुल, शी स्पीक्स गुड इंग्लिश, हम कहते हैं इसका इंटेलिजेंट होगा, ओके, ऐसा नहीं होता होता, ओके, ये हो जाता है हमारे से सम टाइम, हमें नहीं पता लगता, वी नेवर नो। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द टीचिंग मेथोडोलॉजी, ओके, तो दैट्स व्हाई सम सच काइंड ऑफ एरर वी डू, यस, डे टू डे। कंट्रास्ट एरर, सिमिलरिटी एरर, पर्सनल बाइज हो जाता है कई बार, है ना? कुछ टीचर किस पर्सन को पसंद करती हैं, कुछ किसको करती हैं, पर्सनल प्रेजुडिस हो जाता है, पेपर वर्क, फियर ऑफ स्पॉइलिंग रिलेशनशिप, हॉर्न इफेक्ट। Sometimes the reader may evaluate based on one negative quality. For example, student is a very naughty in the class, है ना, having the negative quality. तो you always label the student कि ये तो ऐसा ही है जी, अरे वो शरारती है लेकिन वो इंटेलिजेंट भी तो है, तो वो हॉर्न इफेक्ट आ जाता है सम टाइम, वो रेगुलर नहीं है क्लास के अंदर, ठीक है ना? एंड यू थिंक दैट कि रेगुलर नहीं है क्लास के अंदर, वेरी नॉटी है, तो ये लेजी होगा, वर्क ठीक नहीं करेगा। तो समटाइम्स वी डू द रिसर्च ना, ये सच काइंड ऑफ एरर्स आ जाती हैं, ठीक है? और हाउ टू ओवरकम दीज एरर्स, तो हाउ वी विल ओवरकम देम? नंबर वन, प्रोवाइड डायरेक्शन टू असिस्ट द रेटर इन यूज ऑफ स्केल, यूज ओनली इनफ टाइम टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन नीडेड, क्लियरली डिफाइन ईच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच एन इंडिविजुअल इज रेटेड, क्लियरली डिफाइन करो, ठीक है? इफ यू आर रेटिंग द स्टूडेंट, right, so don't having in the mind she is intelligent, she is a you know always regular, okay, academically उनको परफॉर्म करो पूरा, क्लियरली डिफाइंड, ये देखो बड़ा अच्छा पॉइंट है, clearly defined each characteristics on which an individual is rated, use only those traits or characteristics in rating scales that can be observed readily, define clearly the degree or different level of a gradation that are to be used in the scale, provide ample space between the items so that the descriptive phrases and the rating lines are not crowded, right? तो ये some of थे आपके points to remove the rate errors in the rating scales, ठीक है guys? अब देखो आपका क्वेश्चंस क्या था, हो गया ना क्लियर सारा का सारा क्वेश्चंस आपका? ओके, क्या था हमारा क्वेश्चंस? डिफरेंट टाइप ऑफ रेटिंग स्केल्स, एंड ये देखो, describe different types of rating scales, what are the prominent errors in them and how will you overcome them, हो गया ना हमारा?
अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, देन फिर उसके बाद रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, 15 मिनट में क्वेश्चन और करते हैं हम हिस्टोरिकल रिसर्च का, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। देखो ये लास्ट टाइम आया भी हुआ है, क्योंकि ये पहले लास्ट लास्ट ईयर पेपर ही मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, स्टार्टिंग के 70 पेजेस। ओके, what is a historical research? Describe the steps involved in this historical research with emphasis on historical criticism. Okay, तो इसमें सबसे पहले हमें बताना है अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च, क्या चीज होती है, राइट, डिटेल में। फिर हमें उसके स्टेप्स के बारे में बताना है, फिर उसकी हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म बताना है, ठीक है। तो ये आंसर मैंने दिया हुआ है सारा, ये देखो, ये 6-7 पेजेस का है आंसर, ठीक है। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ऑलरेडी आई हैव प्रिपेयर्ड द पीपीटी। ओके गाइस, वहां से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हिस्टोरिकल रिसर्च फ्रॉम करंट स्लाइड, राइट, ये देखो सारा ही आ गया ना, इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहां से करते हैं। So what is a historical research? It means historical method. Okay. Historical research is the process of a systematically examining past events to give an account of what has happened in the past. It is not a mere accumulation of the facts and dates or even a description of the past events. One of the goal of the historical research is to communicate an understanding of the past event. ओके, इसको अगेन वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए एग्जाम्पल। ओके, तो क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल इज द सेम। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू रिसर्च द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड जीसस। ओके, सो हिस्टोरिकल रिसर्च क्लियरली पता लग गया, राइट, रिपोर्टिंग द पास्ट इवेंट्स, राइट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च? ओके, सो थोड़ा और हमें क्लियर हो जाएगा, राइट। What are the importance and significance, और नेचर और करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो आप इसको, या करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। नंबर 1, टू रिवील और अनकवर द अननोन। क्या बात है अननोन, राइट। रिसर्च क्या चीज होती है? रिसर्च वो होती है वेयर द प्रीवियस रिसर्चर हैज लेफ्ट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट, okay, from there। okay, so whatever you are looking na guys, this is the result of research, do you know that? आप स्कूल्स देखो आपके, राइट, कोई एच टाइप के हैं, कोई किस टाइप के हैं, दिस इज ऑल द रिजल्ट ऑफ रिसर्च। रूम्स देखो अपने, राइट, अंदर उसके रूम्स के अंदर चेयर्स देखो, हाउ द अरेंज्ड चेयर्स आर अरेंज्ड, इट वाज द रिजल्ट ऑफ रिसर्च। someone has done the research for you। okay, so guys, अभी नाउ तो हमारे लिए इट इज अ वेरी इजी थिंग्स। okay, learn about our fathers, forefathers, how much they have done the work, how much labor, how much time they have spent on on starting the schools, है ना। तो now how much they have done the work। so to reveal the uncover the unknown, number 1। second significance और importance क्या है? to answer the questions which have yet been answered, अभी तक उनका जवाब नहीं मिला, उनको रिसर्च करना हमें। नंबर 3, टू रिसर्च एंड आइडेंटिटी द रिलेशनशिप ऑफ द पास्ट हैपनिंग्स एंड देयर लिंक्स विद द प्रेजेंट। Number 4, to record and assess past activities and achievements of individual agencies and institutions, and to assist in the understanding of the human culture. Example, the study of historical events like wars, revolutions, to study about influential personalities, etc. Historical research आ गया ना। स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप क्या क्या है? फर्स्ट, सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम, ये हम ऑलरेडी डन, ठीक है। तो पहला ही चैप्टर था, पहला ही टॉपिक था सेमेस्टर 1 का, रिसर्च का स्टेप्स क्या थे सारे के सारे, ठीक है, किसी भी रिसर्च के, है ना। इफ यू नो दैट 7 होते हैं, मैंने अच्छे से करवाए थे आपको। फर्स्ट क्या था? सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम, देन फॉर्मुलेशन द हाइपोथेसिस, देन कलेक्शन ऑफ डेटा, देन चौथा स्टेप था इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। फिफ्थ था मेकिंग समरी बनाना, ठीक है, फिर जस्टिफिकेशन, फिर लास्ट में उसके जो रेफरेंसेस वगैरह लिखना, बिब्लियोग्राफी। ओके,
सो फर्स्ट सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम, हिज स्टेप्स आ गया फर्स्ट, है ना, यू हैव टू लर्न इट, है ना, जो डिटेल्स में 4-5 लाइंस में डिफाइन करना है आपको। सेकंड आ गया फॉर्मुलेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस, विदाउट मेकिंग द हाइपोथेसिस यू कांट डू रिसर्च। लर्न अबाउट योर सिनॉप्सिस, व्हाट हैव यू डन इन सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में आपने लिखा है ना, यू हैव रिटन ना, दीज आपके 4 या 5 होंगे रिसर्च ऑब्जेक्ट, रिसर्च हाइपोथेसिस होंगे ना, जिसमें लिखा था there will be no difference exist between this, there will be no difference exists between this, है ना, research hypothesis. So you are formulating the hypothesis. The second step immediately formulation of a hypothesis होता है, ठीक है, and you know review of related literature भी होता है। थर्ड इसमें collection of data। अब here क्या है यहाँ पे, ये सिर्फ it is a different from other step से little bit, because historical research में क्या होता है, when you collect the data ना, अब here वो देखो लास्ट लाइन पढ़ो, कलेक्शन ऑफ डेटा तो आपको पता ही लग गया ना, टू कलेक्ट द डेटा, ओके। मेन क्या होता है, लास्ट लाइन, हियर टू कलेक्ट द डेटा एंड इंफॉर्मेशन देयर आर टू काइंड ऑफ ए सोर्सेज, वन इज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अब ये स्टेप्स के अंडर स्टेप्स बनते हैं सिर्फ हिस्टोरिकल रिसर्च में, ओके। अदर्स में वी राइट सिंपल, बट अंडर द हिस्टोरिकल रिसर्च अब कलेक्शन ऑफ डेटा में अब सब सब पॉइंट्स और बन जाएंगे दो इसके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, राइट, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो ये समझना बड़ा जरूरी है। सम टाइम एग्जामिनर यहीं से उठा के शॉर्ट क्वेश्चन डाल देते हैं, ओके। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, ये अंडर हमेशा याद रखना, और आपको ना यू शुड नो इट। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज आ रहा है तो इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट यू नो हिस्टोरिकल रिसर्च। प्राइमरी रिसोर्सेज आर द ओरिजिनल रिसोर्सेज। ये देखो, ये आप कर रहे हो ना, कीप इन द माइंड वही एग्जाम्पल, टीचिंग ऑफ लॉर्ड जीसस, राइट, क्योंकि इफ यू लर्न विद दिस एग्जाम्पल ना, तो यू लर्न विद इन ए सेकेंड, राइट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, प्राइमरी सोर्सेज क्या होंगे इसी के टीचिंग्स की हम बात करें, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड जीसस। प्राइमरी सोर्सेज आर द ओरिजिनल सोर्सेज, the first witness to a fact. Primary sources have been kept unconsciously or consciously. Tools, अब समझो इसको, tools, weapons, clothing, building, painting, coin are the example of primary sources unconsciously kept. Autobiographies, letter, diaries, etc. are consciously kept for information. Second as secondary sources. Secondary sources are the report of the person who reported the testimony of the actual witness. ना, कोई पर्सन हो, टेस्टमनी हो उसकी, तभी हमें पता लग सकता है ये उनकी हैं, नहीं तो पता ही लगता। कई चीजें चेंज हो गई हैं, कई चीजें ऐड हो गई हैं, एक्चुअल क्या कहा था। द राइटर ऑफ द सेकेंडरी सोर्स वाज नॉट ऑन द सीन ऑफ इवेंट, सेकेंडरी सोर्सेज आर नॉट ट्रस्टेड कंप्लीटली बट दे सर्व सम यूजफुल पर्पसेस, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी स्लाइड होगी बताओ, चौथा स्टेप्स होगा, स्टेप्स चल रही है ना, स्टेप्स ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च। फर्स्ट हमने डन कर लिया selecting the problem, second formulation of a hypothesis, second, थर्ड था हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर दो आ गए, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अब चौथा क्या होगा हमारा, वही आ गया, ठीक है, वेरीफाइंग दी गैदर डेटा, ठीक है, यहाँ पे उसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है, ये एक्चुअली वो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा ही है, ये फोर्थ पॉइंट, ओके। पर ये हिस्टोरिकल रिसर्च में कैसे होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Number fourth point under the steps of historical research is verifying the gathered data in terms of authenticity of the sources and the validity of their content. अब ये जो फोर्थ पॉइंट था, जिसमें आम जनरली वी ओनली लर्न कि थर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, फोर्थ इज ए interpretations of a data, but under the historical research, third collection of data is again divided into the two part, primary sources and secondary sources, and fourth, verifying the gathering data means interpretations of the data, again it is subdivided into the two part, one is the external criticism and internal criticism. external criticism से आप इसकी validity निकालते हो, internal criticism से आप इसकी reliability निकालोगे, right? तो external criticism, internal criticism क्या क्या है, external criticism होगी, through external criticism the historian checks the validity of the document, मतलब आप वो रिसर्चर कह लो, हिस्टोरियन कह लो, and determine whether it is admissible as an evidence. For the purpose he asked many questions. Why was the document produced, when was the document produced, who was the author of the document,
उसने उसकी वैलिडिटी अश्योर करनी है ना। इंटरनल क्रिटिसिज्म से होता है उसकी रिलायबिलिटी। आफ्टर एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म द हिस्टोरियन ट्राइज टू, सेकंड वाला इंटरनल क्रिटिसिज्म, आफ्टर एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म द हिस्टोरियन ट्राइज टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी और वर्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट। Following questions comes to his mind. Was the writer competent, unbiased, honest, actual, acquainted with the fact? Was he subject to fear pressure? How long after the event did he make a record of his testimony? I was he able to remember what happened actually? Is the witness in agreement with other competent witness? मतलब उसकी reliability वो श्योर कर रहा है by asking these question, right? तो internal external बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरूर लर्न करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पांचवा आएगा इंटरप्रिटेशंस ऑफ द डेटा, राइट। फोर्थ पॉइंट इसमें एक ऐड हो गया, वेरीफाइंग इट। द रिसर्चर मस्ट बी कॉशियस इन हिज यूज ऑफ एनालॉजी इन द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द डेटा, राइट। सिक्स पॉइंट आ गया स्टेप्स में, राइटिंग ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। छवें में रिसर्च रिपोर्ट आ गया लास्ट। सफिशिएंट केयर शुड बी टेकन इन सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल टू बी प्रेजेंटेड। Okay, the method of organization of a material depend upon the nature of the data gathered, and efficient and effective report, however, depend on the integrity and scholastic ability of the researcher. Number second, the style of writing research report should be lucid, simple, objective, designed scholarly, and intelligible for the report of to be effective. And it should reflect historical accuracy, possess historical authenticity, and should be based on the historical evidence obtained. तो छठवां पॉइंट वो लास्ट स्टेप्स आ गया जिसमें अब आप यू आर फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट, राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। तो इसमें ही इज टॉकिंग अबाउट व्हेन यू हैव टू राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट, तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है गाइस। ओके, वापस आते हैं हम अपने उसी पे क्वेश्चंस पे। ये देखो, व्हाट इज ए हिस्टोरिकल रिसर्च हमने कर लिया, डिस्क्राइब्स द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड ये हमने कर लिया, एंड विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, राइट। आप एक बार इसको देख भी लो, ये देखो, पहले मीनिंग बता दिया, राइट, एक डेफिनेशंस कोई बता दी, ओके, फिर नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, ठीक है। आप चाहे सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंस भी लिख लो, कोई डजंट मैटर। फिर ये देखो स्टेप्स आगे आगे ना, स्टेप्स, सिलेक्शन द प्रॉब्लम हमने कर लिया, फॉर्मुलेशंस हमने कर लिया, कलेक्शन ऑफ डेटा कर लिया। कलेक्शन ऑफ डेटा में हमें लर्न करना है, दो पॉइंट थे, कौन से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ये देखो आ गया ना, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज, राइट। फिर हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म आ गया, राइट। हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म बता दिया, इंटरनल हमने बता दिया, ओके। और ये फिर स्टेप्स आ गए है ना, वो सारे स्टेप्स ही चल रहे हैं, स्टेप्स के अंडर ही है ना बेसिकली। इसको ऐसे ही लिखना है आपने, लास्ट में इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस लिख दो, लास्ट में कंक्लूजन कर दो, लिमिटेशंस कर दो, तो आपका ये भी हो गया। ओके गाइस, तो आज हम वी फिनिश हियर, रेस्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट चैप्टर, ओके। तो इसको एक बार देख लेते हैं हमने क्या कर लिया। आप ये देखिए, हमारा साइड बाय साइड हमने ओपन किया हुआ था ना हमारा सिलेबस। ये देखो अब सिलेबस आ गया लास्ट, ओके। अब देखो हमने व्हाट वी हैव डन इट, राइट। अब आप यू आर अवेयर ऑफ दिस, ओके, आप अपनी लर्निंग शुरू कर दो। ये देखो गाइस, टूल्स एंड टेक्निक्स हमने सारा कंप्लीट कर लिया। ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च टूल कर लिया हमने, वी आर डन इट। क्वेश्चनियर सारे कर लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड यूजेस कर लिए ना, रेटिंग स्केल्स है ना, सारे स्केल्स कर लिए, राइट। ये देखिए ये कर लिया। अप्रोचेस में हमने ये देखो हिस्टोरिकल मेथड कर लिया पूरा, डिस्क्रिप्टिव साइंटिफिक करवा दूंगा आपको, ओके। और हमने रिसर्च रिपोर्ट में ये थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये इसका किया है, रिसर्च रिपोर्ट का और प्रपोजल्स का, है ना, इफ यू रिमेंबर, राइट। ये देखो कोरिलेशंस हमने कर लिया सारा, ओके। तो अभी हमने मतलब 2 घंटे की, 1.5-2 घंटे की क्लास में ये किया, तो 1.5-2 घंटे अभी और लगेंगे। उसमें हम क्या कर लेंगे 1.5-2 घंटे में, एक हम साइंटिफिक, और ये तो जल्दी कर लेंगे, सिंपल है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और डिजाइन आपको समझा दूंगा, 2 रिग्रेशंस करवा दूंगा, 3 ये तो एक ही में हो जाएगा, सिंपल है, 4 और 5वां आपका एनोवा, सिंपल है एनोवा भी, ठीक है, समझा दूंगा, राइट। तो ये हम अराउंड 40-50% इसका सिलेबस हमारा हो गया। तो यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टुडे, ओके। तो आई टेक द क्लास आफ्टर 4 और 5 डेज, वही 2 घंटे की क्लास होगी, 1.5-2 घंटे की, उसमें ये पेपर मैं कर दूंगा, और 11th को मैं आपका इसका टेस्ट ले रहा हूं, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस क्लास। यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी?
you can write in my comment box. Thank you so much for this class.